ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ। ଏହି ସୁନ୍ଦର କବିତାଟିକୁ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ମୌଡ଼ମଣି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚନା କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସର 40 ଛାନ୍ଦରୁ ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ ଉଦ୍ଧୃତ କରାଯାଇଛି। ରୀତିଯୁଗୀୟ କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାବ୍ୟକାର ଭାବରେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆସନର ଅଧିକାରୀ। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟଯୁଗର ଅନ୍ୟତମ ପଥିତଯଶା କାବ୍ୟଶିଳ୍ପୀ। ସେ ରୀତିକବି, ସେ ଆଳଙ୍କାରିକ କବି, ସେ ଶୃଙ୍ଗାର କବି, ଶବ୍ଦ ଓ ଅର୍ଥର କବି, ସେ ଜୀବନ ଓ ଯୌବନର କବି, ସେ ରସ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର କବି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଯଥାର୍ଥରେ କବିଗୁରୁ, ବୀରବର ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଉତ୍କଳୀୟ ସାରସ୍ୱତ ଜଗତର ମହାକବି। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଆକାଶରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚୟ। ସେ ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କର କବି କୁଳଚନ୍ଦ୍ର, ଉତ୍କଳ ଭାରତୀଙ୍କର ସେ ପ୍ରିୟ ବରପୁତ୍ର। ଏହି ମହାନ କବି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୁଏ ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭଞ୍ଜନଗରର ଅନତି ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଘୁମୁସର ରାଜବଂଶରେ। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ପିତା ନୀଳକଣ୍ଠ ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଥିଲେ ରାମ ଉପାସକ। ପବିତ୍ର ରାମ ତାରକ ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧ କରି ସେ ବିଚିତ୍ର କବିତ୍ୱ ଶକ୍ତି ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି କବିତା ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ, କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ, ଲାବଣ୍ୟବତୀ, ରସିକ ହରାବଳୀ, ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି, ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ, କଳା କୌତୁକ, ଚାନ୍ଦଭୂଷଣ ଆଦି କାବ୍ୟ, ରସପଞ୍ଚକ ଭଳି ଗୀତାତ୍ମକ ଆଳଙ୍କାରିକ କୃତି ଓ ଗୀତାବିଧାନ ନାମକ ପଦ୍ୟାତ୍ମକ ଶବ୍ଦକୋଷ ଉପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ମନସ୍କ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଏବଂ କବିଖ୍ୟାତିର କାଳଜୟୀ କୃତି। ତାଙ୍କ ରଚିତ ଚୌପଦୀ ଚୌତିଶା ଓଡ଼ିଆ ଗୀତି କବିତା ଧାରାର ଅପରୂପ ସୃଷ୍ଟି ରୂପେ ବିବେଚିତ। ରାଘବଙ୍କ ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ କବିତାରେ ପାଠ୍ୟ କବିଙ୍କର ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ କାବ୍ୟର 40 ଛାନ୍ଦରୁ ଆନିତ। ରାମକାବ୍ୟ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ 52 ଛନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ରଚନା। ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ ବ ଆଦ୍ୟବର୍ଣ୍ଣ ନିୟମରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ବଳିଲା ରାଘବ ଆଶା ସୀତା ପ୍ରାପତିରେ ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ବରେ ରହୁଛି। ବିଚାରିଲେ ସିନ୍ଧୁ ପୋତି ଯିବା ପର୍ବତରେ ଯେ ବରେ ରହୁଛି। ତେଣୁ ବ ଆଦ୍ୟବର୍ଣ୍ଣ ନିୟମରେ ଏହି କବିତାଟି ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଲଙ୍କେଶ୍ୱର ରାବଣ ଦ୍ୱାରା ଅପହୃତା ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କିପରି ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ କରିଛନ୍ତି, ସମୁଦ୍ରରେ ସେତୁ ବାନ୍ଧିବା ବେଳର କଥା ଏହି କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରିୟତା, ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା, କୌଶଳ ଓ ସମାଜ ପ୍ରତି ନୀତିନିଷ୍ଠ ବାର୍ତ୍ତା ଏହି କବିତାର ଲକ୍ଷଣୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ପତ୍ନୀ ସୀତା ଓ ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହ ପିତୃସତ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବନବାସ ସମୟରେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଞ୍ଚବଟୀ ଅରଣ୍ୟରେ ବାସ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଲଙ୍କାଧିପତି ରାବଣ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିନେଇଛି। ଏହି ଅପହରଣ କରିନେଇଥିବା କଥା ପ୍ରଥମେ ଜଟାୟୁ ନାମକ ପକ୍ଷୀ ନିକଟରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରତା କରିଛନ୍ତି। ହନୁମାନ ବାନର ସେନା, ଭଲ୍ଲୁକ ସେନାଙ୍କୁ ନେଇ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ
समुद्रर अतल जलराशि रे सेतुबंध निर्माण करने को पड़ी। आमे से सेतुबंध निर्माणर समयर कथा पढ़िबा। हनुमंतंक पाखरु माता सीता रावणर अशोक वाटिकार बंदिनी होई रहितिबा कथा जानिछंती। सेतबळे श्रीरामचंद्र तांको प्राप्त करिया पय तांको फेरे आनिया पय इच्छा प्रकट करछंती। बलिला राघव आशा सीता प्रापति रे विचारिले सिंधुपति जीवा पर्वत रे जे। बलिला अर्थ आग्रह है। राघव कहले रामचंद्रंकर बलिला राघव आशा सीता प्राप्त। तेणु सीता को प्राप्त करने निमंते सीता को फेरे आनिबा निमंते तांकर आग्रह है अर्थात इच्छा है। विचारिले सिंधुपति जीवा पर्वत रे जे। तेणु स्थिर कले सिंधु अर्थ समुद्र, समुद्र को पोती अर्थात समुद्र रे एक सेतुबंध निर्माण करी लंकापुरी को जीवापाई। बुड़ी गला पकाइले कपि जेते गिरी बुदबुदु न दिशे जल फिफीकृत करिजे। कपि अर्थ बानर सेना। जेते पथर पकाइले सबुगुड़िक अतल जलराशि लीन हो गला। एमितिकी बुदबुदु मध्य दिशिला नहीं। विस्मय निश्वास तेजी वरुण प्रसन्ने बिना सनरे शयन से दर्भ शयन जे। विस्मय निश्वास तेजी वरुण प्रसन्ने यह देखि श्री रामचंद्र आश्चर्य होइचंती। जलर देवता वरुण को संतुष्ट करिवा पाई कुश सज्जारे सोई अनशन व्रत आरंभ करिसंती। बिना सनरे अर्थात बिना असनरे खाद्य बिना। दर्भ कहले कुश, शयने अर्थात कुश सज्जारे से शयन करिसंती। बुधे शुण अन्य प्रसंग को दश शिर बर गिलासे सुख सारण करी चार जे। बुधे हे ज्ञानी अन्य एक प्रसंग को जानिबा। दश शिर बर गिलास सुख सारण करी चार जे। दश शिर कहले दशानन रावण जने कूटनीतिज्ञ, जने विख्यात कूटनीतिज्ञ। दशानन जानिछंती श्रीरामचंद्रंकर बल कहले 5। के 5 ना 1 रे लक्ष्मण, 2 रे हनुमंत, 3 रे सुग्रीव, 4 रे अंगद, 5 रे विभीषण। तेणु तांकर बल को कमाइबा पाई से कूटनीति प्रयोग करिछंती। एवं सुक और सारण नामक 2 मंत्री तांकर सुक सारण को श्रीरामचंद्र शिविर को पठेवा को स्थिर करछंती, पठेइछंती, दूत करी पठेइछंती। बुधे शुण अन्य प्रसंग को दश शिर बर गिलास से सुख सारण करी चारजे। कौन वार्ता देइछंती एई 2 दूत जो सुख सारण को साथरे की वार्ता पठेइछंती, कहा पाखु पठेइछन हम पढ़िबा। विभीषणे कह ज्येष्ठ भाता पिता सरी बुझी न बुझी को पिता बाणी पिता करिजे। जे विभीषण को जाइके कह ज्येष्ठ भाता पिता समान। ज्येष्ठ भाता कहले बड़ भाई पितांक भड़ी। तांको कथा को मंद अर्थरे ग्रहण करिबा उचित नुह। विभूति को भुंजुथिलु विभूति भूषणे बड़ कूले जनमी शरण कि कारण जे। विभूति को भुजुथिलु अर्थात राजस्व प्राप्त करुथिलु, ऐश्वर्य प्राप्त करुथिलु। बड़ कूले जन्म, रावणर भाई, रावणर अनुज, राजस्व प्राप्त करुथिलु। क्यों कारण राजस्व छाड़ी जने वनचारी सन्यासी पाखरे आश्रित शरणापन्न। एटी विभूति भूषण, विभूति को जी भूषण करते अर्थात शिव, किंतु एटी विभूति भूषण कले आम श्रीरामचंद्र को बुझा। तापर अंगद गति की खबर पठेचन देखा। बोलो अंगद को पिता शत्रु भक्ति पुण्य बादर चाई पितृव्य बाहुड़ा सैन्य जे। यह सहित से कहते जे जाइके अंगद को कहब, अंगद को बुझाईदेव जे पिता
पितार शत्रु प्रति भक्ति नकरी सेना मध्यरे कली सृष्टि करंतु, झगड़ा सृष्टि करंतु, सृष्टि करी पितांकर सान भाई अर्थ दादा, पितृव्य कहले दादा बा कका के सुग्रीव को सहित निजर सैन्य बाहिनी को फेराई नियंतु। बिहाय से बिहारी सागर जिणी जाई, वर्तक स्वरूप ध्रुत केहे केहे टिहो कहीजे। बिहाय से बिहारी सागर जिणी जाई, तेणु उभय मंत्रीद्वय सुक और सारण एक वर्तकर रूप धारण करी समुद्र उपरे के टिओ टिओ कही उड़ी उड़ी पार होइछंती, जाई श्रीरामचंद्र शिविर रे पहुँची। विख्यात करु विंशति कर कहिबार, बोध उभय भୟରେ पलाई सत्वर जे। एठी देख विंशति कर के ना रावण, आमर गोटे मुंड दुईटी हाथ, तेणु रावणर मुंड केतोटी 10टी, दशानन 10 शिर, तेणु 10टी मुंड माने 20टी हाथ विंशति कर। विख्यात करु विंशति कर कहिबार, विंशति कर कहले दशानन रावण जहाँ कहिथिले सेई कथा गुड़िक कहिबारु बोध उभय भୟରେ पलाई सत्वर जे। उभय प्राण भୟରେ पलाई आसिचंती। बाहुड़ी रावण कही शुण देव रिपु, बोइला अनुज जीपी सीता को समर्पुजे। बाहुड़ी आसी से रावण को देवरिपु कहले देवतांकर शत्रु किए रावण, रावण को कहिचंती बोइले अनुज जीवी सीता को समर्पुजे। बोइले अनुज कहले ये विभीषण कहले मु जीवी निश्चित भाई पाखक फेरी जीवी, निश्चित लंकापुरी को फेरी जीवी, किंतु लंकाधिपति रावण ससम्मानी माता सीता को श्रीरामचंद्र को समर्पी दियंतु। बंचिलु अंग देबारु कि धर्मे, वज्राघात समतल प्रहरीला व्यमजे। किंतु अंगदों पाखरु निज जीवन धर्म बलरे निज जीवन बंचाई आसचु। वज्राघात समतल प्रहरीला व्यमजे, वज्रघात समान एक चापुड़ा व्यम अर्थ शून्य को मारिले। बाजी थिले चूर्ण बा पाताले भजी थिव, बिंध्य भानु तोषी हेले बंचाई दैव जे। जदि बाजी थांता चूर्ण चली जाई थांता। बल केते बोलू बोले जते शंख, सही बारी राशि जनित तेते शंख नहीं। रावण पचारिछंती जे श्रीरामचंद्रंकर सैन्य बल केते। सुक सारण उत्तर रे कहिछंती जे जलराशि बारी राशि समुद्र रे जेते शंख नहीं सेतिकी संख्यारे शंखर सैन्य सामंत श्रीरामचंद्र निकटरे। वितरणे सागर की 5 पचारिला, बिहे राम कृश सज्जा प्रति उत्तर देला जे। रावण पचारिछंती अच्छा समुद्र पारी हवा पाई वितरणे अर्थात पारी हवा पाई सागर पार हवा पाई कि 5 पचारिला, 5 अर्थात क्यों प्रकार योजना करिछंती किभली भाव रे समुद्र पारी हेबे। बिहे राम कुश सज्जा प्रति उत्तर देला, अर्थात श्रीरामचंद्र समुद्र को पारी हवा निमंते जलर देवता वरुण को प्रसन्न करने निमंते कुश सज्जारे अनशनरे अर्थात बिना खाद्य तपस्या करुछंती। ये उत्तर देबारु विरस को मंद करी मंद हासे जन्मे, बोले कि करिब एड़े हीन पराक्रम जे। जेमती एतिकी खबर शुनिचंती हसीदेले, कहले ये जलर देवता वरुण को प्रसन्न करिया निमंते जे तपस्या करुछंती से कौन हीन पराक्रमी मोर करियो म कहीकि मंदहास सृष्टि करिछंती लंकाधिपति रावण। धन्यवाद पिला माने।